Hello dear students, here we are beginning with kinds of kinds of sets. So what is empty set or you can say null set? एक ऐसा set which contains no element. A set which does not contain any element is called an empty set. Okay, it is denoted by phi or simply two curly brackets with no elements. Okay, so just see collection of natural numbers less than 1, collection of natural numbers less than 1. मतलब कोई ऐसी नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करती नेचुरल नंबर जो 1 से छोटी हो, सो इट इज एन एम्प्टी सेट. Another x is that 2x plus 11 equals to 3 and x is a natural number. Again 2x is equal to क्या 3 minus 11 minus 8, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें माइनस में, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है. हेंस इट इज एन एम्प्टी सेट. x is that x square equals to 9 and x is an even integer. अब even integer है, x की वैल्यू क्या मिल रही है प्लस माइनस 3 which is not an even integer. Hence we can say it is not an even integer. Hence it is not मतलब it is an empty set. Okay, x is that x is an even prime number. Even prime number, अब even prime number तो we have only 2 ना, तो 2 से बड़ा तो कोई प्राइम नंबर होता नहीं है. Hence we can say what it is an empty set. Now we come to the singleton set. What is a singleton set? Singleton set क्या होता है? A set that contains only one element. एक set जो कि केवल एक एलिमेंट कंटेन करता है. A set that contains only one element is called the singleton set. एक ऐसा set which contains only one element. Okay, a set that contains only one element is called a singleton set. So now just see 0. It means one element is there. It is also singleton set. X says that X is the capital of India. X says that X is the capital of India. Hence it is what? Singleton set. क्यों? क्योंकि capital of India it is only 1. X says that 3x minus 1 equals to 8. The value of x is what? 3x is equal to 9. Then x equals to 3. Only one value. Hence it is a singleton set. Finite set. Finite set क्या होते हैं? A set with countable number of elements means a set that contains limited or definite number of different elements is called a finite set. Is called a finite set. Means number of elements can be counted. Count हो सकें. जैसे as given है a e i o u countable है. a 2 4 6 till 100 this is also countable. Finite set. X is that x is a month of year countable. Hence it is a finite set. P x is that x belongs to n. And x is a prime factor of 210. Prime factor of 210 is still countable. Means a set containing countable number of elements, or you can say contains definite number of different elements, is called a finite set. Okay. Infinite set. Finite set countable. इसमें क्या होगा? एक ऐसा set जो finite ना हो, infinite होगा. The set which is not finite is known as an infinite set. तो a set that contains an unlimited number of number of different elements. Unlimited number of different elements is called an infinite set. So just see a set which is not finite is called an infinite set. ठीक. तो now just see the example. Set of even natural numbers. Set of even natural number given है 2 4 6 8 and so on. Count नहीं कर सकते ना till where it will go. So it will go to infinity. Then it is not countable. So it is known as an infinite set. X says that x belongs to natural numbers and x is prime. अब क्या prime number total number of जितने भी elements होंगे प्राइम्स में इसमें वो we cannot count. Hence it is what? An infinite set. 2 3 5 7 11 13 and so on. Okay, तो infinite हुआ ना. The set of all points on a line segment, it is also infinite. Okay, you cannot count it. All इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिटेन इन द रोस्टर फॉर्म. जो भी हमारे सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं उनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. मतलब सारे इनफाइनाइट सेट्स रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं. ठीक है, तो ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म. ओके, तो रियल नंबर्स कैन नॉट बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म. रियल नंबर्स हमारी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं. ठीक. कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट. व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट? द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट. The number of different elements in a finite set is called the cardinal number of set. ठीक. जैसे A का सेट है तो cardinal number of A is denoted by NA.
नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम उसकी कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक हमारे पास सेट गिवन है AEIOU, तो इसकी कार्डिनल नंबर कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो NA इक्वल्स टू 5, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कार्डिनल नंबर, n within the small bracket that set and that is equal to 5. Just see A be the set of letters in the word school, how many letters are there, so just count, हम लोग क्या करते हैं रिपीट तो करते नहीं इसमें, तो SCHOL तो कितने एलिमेंट्स हुए 5, यानी 5 हो गया, क्लियर है। AX is that X is a digit in our number system, so नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं हमारे पास में 0 से लेके 9 तक, इज अ डिजिट इन हमार नंबर सिस्टम, तो 0 से लेके हमारे पास में 9, ठीक, तो 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, तो NA कितना हो गया 10 हो गया, ओके। नाउ इक्विवेलेंट सेट्स, व्हाट आर द इक्विवेलेंट सेट्स, two finite sets A and B, two finite sets A and B are called equivalent if they have the same number of elements, दो सेट हमारे इक्विवेलेंट होंगे if they have the same number of elements, जैसे सेट A है सेट B है, इक्विवेलेंट कब होंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, ठीक, सेट A इक्विवेलेंट टू सेट B, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट, A इज इक्विवेलेंट टू B, देन NA इक्वल्स टू NB, मतलब उनकी कार्डिनल नंबर हमारी इक्वल होनी चाहिए, देन वी कैन से दे आर इक्विवेलेंट सेट, इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट, ठीक, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट्स, जस्ट सी सेट A है ABCDE, सेट B है 2 3 5 7 9, NA कितना है 5, NB कितना है 5, तो दोनों सेट में क्या है कार्डिनल नंबर दोनों के इक्वल है, NA NB के इक्वल है, सो A इज इक्विवेलेंट टू B। नाउ जस्ट सी A कोई सेट है, X इज दैट X इज अ कलर ऑफ रेनबो, और B कोई सेट है, X इज दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर, X इज लेस देन 7, ठीक। अब यहाँ से देखिए NB होल नंबर है 7 से कम, तो 0 से शुरू होगी 0 से 6 तक, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 7, NA कितना है 7, तो NA इक्वल्स टू NB, हेंस A इज इक्विवेलेंट टू B। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इक्वल सेट्स, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element, written as A equals to B, if not equal A does not equal to B, मतलब same elements का मतलब क्या है, जैसे A given है 1 2 के, B given है 2 1 2 1, रिपीट कर रहा है, सेट तो वही लिखा हुआ है ना, तो सेट इक्वल्स टू सेट B, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल P given है X is that X is a vowel in the word equality, Q given है X is that X is a vowel in the word quantitative, ठीक, क्वांटिटेटिव में, और दोनों में चेक किया PEUAI ये आया, Q में EUAI, मतलब क्या है नंबर जो है हमारे एलिमेंट्स के, E कौन सा है EUAI, मतलब एग्जैक्टली सेम है ना, तो P इक्वल्स टू Q, मतलब दे हैव द सेम एलिमेंट्स, P इक्वल्स टू Q, तो इफ A and B are finite sets and A equals to B, then we can say NA and B के भी इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक, तो सेट A सेट B के इक्विवेलेंट है, मतलब सेट्स अगर इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, बट टू फाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, ठीक, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, मतलब जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट हैं तो इक्वल भी हों, ओके। नाउ जस्ट सी स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, state which of the following sets are infinite or finite. In case of finite sets, mention the cardinal number. तो just see, A given है X is that X belongs to natural number and X square equals to 9. ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास में यहाँ से नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो X क्या है +-3 है, X इज इक्वल टू 3, काउंटेबल है ना, नेचुरल नंबर 3 आ रहा है, फाइनाइट है, NA इक्वल्स टू 1 है, ओके, देन वी राइट इट। B given है X is that X belongs to whole number and 2x minus 1 equals to 0 and 2x minus 1 equals to 0, होल नंबर है ना, तो वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, लेकिन X क्या है होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो B क्या हुआ 5 हुआ, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन 5 तो काउंटेबल है ना, हेंस इट इज अ फाइनाइट सेट। अगेन X is that X belongs to नेचुरल नंबर एंड X स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, X माइनस 1 X माइनस 2 0 के इक्वल आया, एक वैल्यू मिली 1 दूसरी वैल्यू 2, तो क्या है फाइनाइट है ना, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और आंसर कितना हो जाएगा 2। X is that X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, X प्राइम है, ठीक, अब काउंट नहीं किए जा सकते तो इनफाइनाइट। X is that X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, X इज ऑड, इनफाइनाइट। F X is that X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग लेस देन 31 डेज, अब लेस देन 31 डेज
काउंटेबल है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, तो एन एफ ये कितना हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। अगेन जस्ट सी एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स क्या है -3 से बड़ा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे ना, वी कैन नॉट काउंट। तो बेसिक बात इतनी ही है जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास में, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो फाइनाइट, और जिसमें नहीं हो सकते वो इनफाइनाइट। ओके, एक क्वेश्चन ये गिवन है, एक्स इज दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, पी गिवन है, प्राइम नंबर लेस देन 20। तो जस्ट हमसे बोल रहे हैं कि एन एस प्लस एन पी मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ एस प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ पी लिखना है। तो एस हो गया 369 टिल 99, पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 लेस देन 100। अब यहाँ क्या है, ये नंबर कितनी होंगी उसके लिए वी यूज ए पी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यू मस्ट हैव रेड इन क्लास 10th, ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एल लास्ट कितना है हमारे पास में, लास्ट नंबर 99 है ना, तो 99 यहाँ लिखा, ए फर्स्ट टर्म 3 एन माइनस 1, विद द हेल्प ऑफ दिस 96 99 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 3 से डिवाइड किया 96 को, तो 96/3 n माइनस 1 के इक्वल हो गया, तो n माइनस 1 32 मतलब n 33 आ गया। बाई दिस यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, गिनेंगे तो नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो n कितना है 33, काउंटेबल है, p कितना है वी राइट इट, क्या गिवन है एक्स इज दैट एक्स प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20। तो जस्ट सी 2 3 5 7 11 13 17 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, एन पी हमारे पास 8 हो गया, एन एस 33 हो गया, दोनों का सम कर दिया 41। ओके, दैट इज ऑल।